In this video, we will be discussing about derived data types. Now, derived data types are arrays, functions, pointers, and reference variables. These are non-primitive data types because they are not predefined like primitive types, but they are defined by the programmer and they are derived from the primitive types, so they are also known as derived data types. So we will now be discussing the various parts of derived data types or various derived data types in fact. So the first is array. Array is a finite ordered collection of homogeneous element. By the term homogeneous here we mean they are of same type. So if I discuss like quarterly sales, now all that sales will be of same type. So in that case, this can be represented as a array. So here you see that normally we write int followed by the variable name, but here we are also enclosing the number of elements it will hold in the square brackets. So this is indicator that it is an array. So its name is the name of this variable is succeeded by a pair of square brackets, which is indicator for an array. So they are modifying that particular data type of int, so we can say it is a derived data type and it is being derived from some primitive type. So it is normally used with generally with user defined data types, and uh, we use it occasionally in our programs. Now we are also having vectors and arrays, and these will be used later. In addition, we can also have integer array. We can also have strings and character arrays. So various data types. It is not only we can have of int, but we can have a float also. Then we can have a character arrays usually and are used to store characters, and collection of characters is called a string. In C++, we are also having a facility called string that is used to manipulate strings. So this will be discussed in that chapter. And in addition, we can also have varchar type character whose size is equal to the string. Now size of the string is always equal to the total number of characters plus 1 to indicate the last character /0, which is a terminator for that string. So in addition to array, we are also having pointers, which is a variable that contains the address of the data item. मतलब किसी एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा देते हैं हम पॉइंटर में, तो इसको हम पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं, और उसको रेफर करने के लिए फिर हम उसके लिए इनडायरेक्शन ऑपरेटर यानी कि आस्ट्रिक के साथ, तो पॉइंटर्स को शो करने के लिए अगर अपने प्रोग्राम में हमने शो करना हो तो हम उस केस में उसके आगे यहाँ पे देखिए ये ptr नाम का वेरिएबल है और उसके आगे स्टार लगा दिया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है, और इंट इसकी बेसिक, तो ये बताता है पॉइंटर टू इंट। तो इसी तरह मैसेज एक वेरिएबल है msg, तो ये पॉइंटर टू कैर, इसलिए इसके अंदर हमने एक पॉइंटर का मतलब एक एरे की तरह होगा, बिहेव करेगा, तो इसमें एक सेट ऑफ करेक्टर्स h और i हमने स्टोर किए। तो इसी तरह हम और भी वेरियस वेज होते हैं एरे ऑफ करेक्ट पॉइंटर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। ये एक बहुत डिटेल का टॉपिक है, जब आएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो बेसिक नोटेशन क्या होती है कि हम एक वेरिएबल देते हैं x इज इक्वल टू 10 और उसका जो एड्रेस होता है पॉइंटर में डाल देते हैं, और क्योंकि ये पॉइंटर है इंटीजर को, क्योंकि इंटीजर टाइप का नंबर ये स्टोर कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये लिखते हैं। तो हम आगे चलते हैं। रेफरेंस वेरिएबल अवेलेबल होते हैं C++ में, ये C में नहीं होते। तो एक तरह से ये अलाइस क्रिएट कर देते हैं एग्जिस्टिंग वेरिएबल का। तो इसको लिखने का सबसे इजी तरीका क्या है, कोई भी वेरिएबल लिखिए, अगर उसका सेम टू सेम अलाइस क्रिएट करना है या रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है, तो उस रेफरेंस वेरिएबल के आगे हम एम्परसेंड का सिंबल डाल देते हैं। तो वो जो x होता है वो वैल्यू इसके अंदर यहाँ पे सेम टू सेम, दोनों सेम ही को पॉइंट कर रहे होते हैं। तो अगर हम y लिखेंगे तब भी 10 मिलेगा, x मिलेंगे, तो यहाँ पे दे हैव सेम मेमोरी लोकेशन, सो चेंजिंग वन। हाँ, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम x में चेंज करते हैं तो y में चेंजेस वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास एक ये जो लास्ट डाटा टाइप है डिराइव्ड डाटा टाइप की कैटेगरी में, वो होती है फंक्शन। और आपको मालूम है फंक्शन क्या होता है, एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो कि एक स्पेसिफिक काम करता है। तो फंक्शंस कैन बी लाइब्रेरी फंक्शंस, प्रिंटफ जैसे स्केयरओटी, ये लाइब्रेरी इसलिए कहते हैं या इनबिल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले से बने होते हैं। हम अपने खुद के भी फंक्शंस बनाते हैं, तो ये पूरा एक चैप्टर है। फॉर द टाइमिंग आपको ये हमने थोड़े से फंक्शन बीच में एक प्रोग्राम में दिखाए भी थे, इसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो फंक्शन के लिए पहले फंक्शन का नाम होता है, ये भी एक आइडेंटिफायर होता है, उसकी रिटर्न टाइप होती है, और उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं ये फंक्शन डेक्लेरेशन को शो कर रहा है। तो इस तरह से ये चारों डाटा टाइप्स जो हमने मेंशन किए हैं ये डिराइव्ड डाटा टाइप्स हैं, और ये हम प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। अब हम प्रोग्राम डिराइव्ड डाटा टाइप्स के करेंगे। ना डिराइव्ड डाटा टाइप्स आपको मालूम है कि हम वो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं और प्रोग्रामर उनको क्रिएट करता है, और ये बेसिक प्रिमिटिव टाइप्स को मॉडिफाई कर रही होती हैं एक तरह से।
तो हम सबसे पहले एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एरे के बारे में पढ़ते हैं। हमने एरे के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इंट एरे का नाम, और जैसे अगर मान लो एरे का नाम मैं क्वार्टरली सेल्स कर देता हूँ, एक क्वार्टर में एक साल में 4 क्वार्टर सेल्स होती है, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लो किसी एक क्वार्टर में ये सेल्स फिगर है, ठीक है। और एरे की डेफिनेशन देते वक्त हमने यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स लिखा है। अब ये नॉर्मल वेरिएबल लिखेंगे तो इसको क्या पता चलेगा, एक से ज्यादा वैल्यू तो नॉर्मल वेरिएबल ले नहीं सकता। तो जब हमें देना हो तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं और इसके आगे ये वाला सिंबल डाल देते हैं जो कि एरे का होता है। तो अब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और इसकी अगर वैल्यू को प्रिंट करना हो तो हम सीधा लिखेंगे, इसका जो फर्स्ट इंडेक्स होता है तो वो होता है 0 बाय डिफॉल्ट। जैसे कि अगर हम लिखें यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स, और यहाँ पे हम NN लिखते हैं, इसको सेव कर लें और हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए ये वैल्यू प्रिंट कर दिया इसने, क्वार्टरली सेल की फर्स्ट फिगर, ठीक है। इसी तरह अगर हमें दूसरी फिगर करनी हो तो हम इसको एक बार और इसमें दूसरा एलिमेंट 1 इंडेक्स पे होता है, तो इसके लिए हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। बट अगर हम चाहते हैं फिर ऐसे दूसरे के बाद तीसरे के लिए हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि जो भी इसका नंबर आपको लग रहा है कि जैसे ये 3 है, इसमें 3 की जगह 3-1 लिख दो। अगर 3 लग रहा है 234 के लिए तो फोर्थ नंबर लग रहा है तो 4-1 लिख दो। अब बार बार ये नंबर लिखने पड़ेंगे। इसका एक बेटर तरीका होता है कि आप एक लूप लगा लीजिए, जैसे कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई। अब हाँ, इस एरे का हम साइज भी अभी आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं। अब इस केस में मुझे 4 दिख रहे हैं तो मैंने 4 लिख दिया है, पर अभी मैं आपको साइज के थ्रू भी बताता हूँ कि ये कैसे होता है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये लूप के अंदर हमने लिख दिया, थोड़ी सी इंडेंटेशन शो कर देते हैं, और साथ में इसमें हम क्योंकि एक ही बार लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आई यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब ये देखना, ये सारे वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। तो इसमें ये जो डाटा टाइप है ये एरे डिक्लेयर कर रहा है और उस एरे के मेंबर्स को प्रिंट कर रहा है। अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और ये रन करते हैं। ये देखो सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस एरे का साइज क्या है, ठीक है। अब नॉर्मली इसमें काउंट करने हो, पहली बात अगर साइज निकालना है तो लेट साइज। अगर हमने जैसे कि अगर काउंट करना है कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, वैसे तो 4 दिख रहे हैं, पर अगर ज़्यादा हो या कम हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला या एक बहुत ही इजी क्या तरीका है, साइज ऑफ लिख लो, उसमें बाद एरे का नाम, जैसे कि यहाँ पे इसका नाम बड़ा लिखा है इसलिए मैंने इसको कॉपी करने की जरूरत पड़ रही, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्योंकि हर चीज, हर एलिमेंट इंट टाइप का है, क्योंकि हमने शुरू में लिख दिया कि एरे बेसिकली मेंबर्स किस तरह के स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप के, तो ये एक बेसिकली डिराइव्ड टाइप है इसकी एरे। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इंटीजर टाइप के होंगे, तो इसलिए मुझे बाहर इंट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं उसका साइज निकाल लूंगा, और यहाँ पे अब मैं 4 की जगह इस वैल्यू को लिख दूंगा। तो ये बता रहा है कि इसमें 4 है, तो अब ये देखिए बिल्कुल ठीक चलेगा, ठीक है। तो अगर आपने एरे के हर टोटल एरे का साइज निकाल लिया आपने, जैसे कि साइज ऑफ ऑपरेटर से ही उसका नाम एरे का लिखने के बाद हमें टोटल साइज मिल गया। अगर आप इसके बिना लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए अब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब हम इसको प्रिंट भी करते हैं, या इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, काउंट साइज ऑफ, और क्वार्टर सेल्स आ जाता है, और इसको भी हम प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि एरे का साइज क्या आ रहा है। क्या गलती हो गई हमें, कंट्रोल एस, और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका साइज 16 इसलिए आ रहा है क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट्स का होता है और 4 हमने इसकी मेंबर्स रखे हैं, तो इस करके यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू 4 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एरे का साइज भी निकल गया हमारे पास। और बाय डिफॉल्ट जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर हो रहा होता है, इसलिए हमने इसका लूप 0 से स्टार्ट करके जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है
और वो वैल्यू यहाँ पे पहले में 0 आ जाएगी, फिर अगली बार चलेगा 1 आ जाएगी, फिर 2 और 3, इस तरह से ये एरे डिराइव्ड डाटा टाइप चलती है। उसके बाद हम इसमें फ्लोट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे या डबल लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यूज यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेंगी, जैसे कि 0.25 यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट। वैसे तो ये सेल्स एक नंबर है, पर चलो मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ये एक नंबर होना ही चाहिए, इंटीजर नंबर। अब इसमें हमें याद रखना है कि यहाँ पे इंट नहीं लिखना, यहाँ पे जो डाटा टाइप का हर एलिमेंट है उसका डाटा टाइप लिखना है, ताकि हमें काउंट पता चल जाए। क्योंकि देखिए ना, टोटल से जो एरे का साइज होगा वो उसके डाटा टाइप के डिपेंड करेगा, उतने नंबर मल्टीप्लाई करके, तो उसको ही हमने उसके डाटा टाइप से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये देखें कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये वो वैल्यूज आ रही है। तो इस तरह हमारे पास ये एरे होता है। इसी तरह हम एक पॉइंटर भी ले सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इंट नंबर इज इक्वल टू 10 और हमने यहाँ पे नीचे लिख देना है इंट, हमने एक पॉइंटर लिया जो पॉइंट करेगा इंटीजर को, इसलिए हमने लिखा इंट पॉइंटर और उसके अंदर हमने इसका एड्रेस डाल दिया एप्रेसेंट नंबर। अब हमने इसकी वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपने तो इस तरह से हम ये जो इंटीजर है उसको स्टार लगा के मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये भी एक डिराइव्ड डाटा टाइप बन गई है। तो यहाँ पे हम स्टार ptr लगाएंगे और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 10 आ रही है। ये इसलिए क्योंकि पॉइंटर के अंदर एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, एक एड्रेस होता है। किसका एड्रेस होता है? इसका। ठीक है, अब इसके एड्रेस के ऊपर हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर की मदद के साथ इसको रेफर करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया और ये एक पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। तो ये हम आगे देखेंगे कि पॉइंटर्स के चैप्टर में कि इसकी डिटेल क्या है। इसी तरह हमारे पास एक रेफरेंस वेरिएबल भी होता है, हम उसके लिए लिखेंगे, ये देखिए, उसको भी हम अलाइस कहते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, जैसे हमने पॉइंटर लिखा है उसकी जगह मान लो इसी को मैं ptr की जगह एप्रेसेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और इसमें हमें एंड नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अब ये जो इसका ये मतलब है कि जो नम नाम का वेरिएबल था उसका एक और नाम रख दिया गया है और उसका नाम है गया ptr। तो ये जो होता है ये है डिराइव्ड डाटा टाइप, इसमें उसकी सेम वैल्यू आ जाती है, तो इसलिए इसका अलाइस काम करता है। तो ये अलाइस वाले हम फंक्शन के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन भी हो सकता है। मान लो हमने डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया। अब ये देखो कि इस केस में हमने एक फंक्शन बनाया, इसको कॉल करना है। तो उसके लिए हमने लिख दिया फंक्शन, पहले तो हमने उसकी रिटर्न टाइप लिख दी, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। हमने लिख दिया डिस्प्ले और इसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया। तो इसको हमने सेव किया और अब हमने इसको रन किया तो ये हमें कोई मैसेज दे रहा। तो ये सारी जो वेज हैं ये सारी डिराइव्ड डाटा टाइप की हैं जो आपने यहाँ पे अभी पढ़ी थी। ओके।